ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਪਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਛੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੰਦ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਮ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਚਿਤ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਤੂੰ ਸਤ ਹੈ, ਸੁਹਾਣ ਤੂੰ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਸ ਹੀ ਹੁਲਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਹੀ ਚਾਓ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਪੇਗੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰ ਜੋ ਅਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਣਤ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ
ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ। ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वस्त बूझे तां होवें पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शनी, एक नू समझे, एक नाल जुड़े, एक नू जाने ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, जिन्हां दे बोल आरंभ होंदे ने एक तो, बाणी आरंभ होंदी है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना। इतनी पहेली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है, और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। वो सरगुण दे तल ते अनेक है, वो निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला है, ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत होणगे, पर सतगुरु का फैसला है, बाणी बिरलो विचार सी। ये कोई विरला विचारेगा और विरला ही अपने सोच मंडल दे चले आवेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया? हाथ बदल गए, पैर बदल गए,
मूंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया। सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदियां मनुख दा संसार बदल जाता है। सोचनी दे बदलदियां मनुख दा आचरण बदल जाता है। चिंतन दे बदलदियां मनुख दा सब कुछ बदल जाता है। सारे दा सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदियां। और किधरे बहुगिणती दे मनुखां दे विचार बदल जान, इसे नूं कहंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहुगिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जाता है, युग बदल जाता है। और जे व्यक्तिगत रूप दे किसी एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्जे जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इक्को एक कौम है सिख, जो विचार नूं मत्था टेकदी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मत्था टेकदी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम बेभूत लगाओ। जिसदा गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगों मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद ये मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीश निवाइए क्या थिए, जां हृदय कुसुदे जाए। ये तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है, जिस दे अगों तू झुक रहे हैं, न तेनू समझ, न तेनू बोध, न तेरी श्रद्धा, न तेरा भरोसा। ये शीश निवाइए क्या थिए, जां हृदय कुसुदे जाए। हो सकता है कि तेरे इस दान दे च भी पखंड होवे, तेरे इस मत्था टेकण दे च भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्जे जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा किहड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पांदा है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख को अपने विचार अर्पण करने की जांच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जांच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां की मूर्ति होर की है, ये भेंट करने की जांच आ जाए। और जिस दिन ये अपने विचार भेंट करदा है, गुरु अपने विचार इसनूं दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ये क्रोध भेंट करे ते दया मिले, ये काम भेंट करे ते राम मिले, ये हंकार भेंट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा, अपने मन नूं भेंट करना की है, अपने विचारां नूं भेंट करना। ते हुण मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां दे च है कि कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसी मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चली रही हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी। इस खलड़ी दे थल्ले मिंज है, मिंज दे थल्ले मांस है, मांस दे थल्ले हड्डियां है। आखिर इन्हां चारां दा मजमूआ ही तन है और है की। भगत कबीर कहते हैं, बिस्टा अस्त रकट परेटे चाम,
ਉਹ ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੰਜ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਖਲੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਖਲੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਖਲੜੀ ਹੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੌਖ ਦੁਆਰ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਵਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦੀ ਮਾਇਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਹੂਆ ਰੰਗ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। परमात्मा की पसंद भी यही है, एक रंग नहीं। अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेका रंग, बेशतर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है। रंग सबे नारायणे जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है। हड्डियां दिते चढ़िया होया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है? वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमूआ है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां, मांस, मिंज, खलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमूआ है। विचार, सोचनी, चितवनी ते आहंग। इसनूं कहंदे ने मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। इसनूं शास्त्रकार चतुष्टा अंताकरण भी कहते हैं। चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है, मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नूं मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है ते किस विचार नूं तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध ते जद मनुख किसी नूं याद करदा है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, वही मन बन गया चित्त। मन, बुद्ध, चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहता है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन। मन, बुद्ध, चित्त, आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जाता है? हाँ, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन दा मान करदा है, धन दा मान करदा है, जोबन दा मान करदा है, प्रभुता दा मान करदा है, परिवार ते मान करदा है, जात ते मान करदा है, कुल ते मान करदा है। लेकिन जब हंकार बदल जाता है तो ये रब ते मान करदा है, बाकी किसी ते मान नहीं करदा, गुरु ते मान करदा है। ताण मान दीबान साचा, नानक की प्रभ टेक। हे प्रभु, हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा ताण है, मैनू हुण तेरे ते ही मान है। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभुता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है। ये ते महिला है, हंकारी है। यही लोगों को है। कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रभुता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा मान, जोबन दा मान, प्रभुता दा मान। भगत भी मैं अर्ज करा निमाणे नहीं आउंदे, मान तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी मान आउंदा उन्हां कोल। किस ते?
उस परमात्मा दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहंदे ने माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है जिहदे कोल ताण नहीं उहदे कोल माण कादा, और जो निताणा है निमाणा है उते मरण तो पहले मर गया, उते कबर दे चला गया, उते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा हुंदा है, निताणा देश निमाणा हुंदा है, और मरण तो पहले मर गया हुंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगत नहीं। कमजोर कहंदे ने उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसी तरह की भी कोई ताकत नहीं, ना धन का जोर, ना जोबन का जोर, ना कुल का जोर, ना जात का जोर, तो जोर किसदा? जोर हुण प्रभु दा। ताण माण दीबान साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु हुण तू मेरा ताण है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही माण है। परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है। बाकी हंकार मैला है। विचार जद बदलते ने तो हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां दे च है कि मनुख दी सोचणी दे च की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदियां संसार बदलदा है, सोचणी दे बदलदियां ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदियां, यादां दे बदलदियां ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदियां ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है मनुख दे विचारां दे च की है, सोचणी दे च की है, यादां दे च की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहंदे ने कि मनुख दे विचारां दे च, मनुख दी सोचणी दे च और मनुख दे चिंतन दे च काम है, लोभ है, अहंकार है, और की है? कुछ भी नहीं है। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पए विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचणी नूं, सोचणी दे च की है, और पढ़ो अपनियां यादां नूं, यादां दे च की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है, अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकदा, सिर दे लेख नहीं पढ़दा। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न दी जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नूं बदल देवे, शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे च लीन है, मन नूं समझण दी कोशिश पिया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तो इत्थे तक कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा विशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े सियाणे सन, बड़ियां शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ब्रह्मा विशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। वो भी मन दियां गहराइयां नूं समझ ना सके ते मन दे हत्थों ठगा गए। ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसदा अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरदास जी। चारे वेद वखाण दा, चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा, वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेनी। लोकी कहंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए।
मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए है, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेणगे, किवें कर लेणगे? जिन्हां नूं मन की बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहंदे ने मन नूं इकागर करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नूं मन की समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन इकागर होवे। मन की इकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहंदे मन नूं इकागर करके कीर्तन करो, मन नूं इकागर करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा, ओही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन की बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं। ओही कहंदे ने मन नूं इकागर करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन इकागर होवे, पाठ करो ताकि मन इकागर होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन की समझ नहीं, मन का कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा विष्ण नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया। मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भुल करते ने, इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार, अपने जज्बात नूं काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नूं भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नूं साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचणी विच की है, मनुख दे चिंतन विच, यादां विच की है? मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहते ने ये जो तीन ने, काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है, गुस्सा आउंदा है। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ तो हंकारी ऐसे होंदे ने, वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते हैं। कहते हैं ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान, असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक कोई जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ होंदा रहेगा। ये तो केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना आवां तो सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना आवां तो दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना आवां तो हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनूं कौन दसे, तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगदा है, प्यारा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है।
ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤਵੱਜਾ। ਜੋ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮਹੂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਪ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣ ਉਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਜਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो कहता मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द का अंदर प्रवेश होना कठिन है। और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है। इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ भी उस तो सदके किए जा सकते हैं। सुनिए 68 का इशनान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश करती है, वो पच के मिंज बनती है, खून बनती है, मांस बनती है, शरीर की शक्ति बनती है, तवानाई बनती है, इंद्रियां का बल बनती है। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जद कोई सुनेगा, और सुनेगा वही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र। नहीं तो कौन सुनता है?
शौकीआ लोकी अपने घर दे च भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधरे सुनना ना पै जाए। कौन सुनदा है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकदा है, मित्र नूं सुन सकदा है, पत्नी नूं सुन सकदा है, पति नूं सुन सकदा है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता, विनिम्रता, तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कहते तालमेल नहीं बैठिया, तालमेल नहीं बैठिया। ताल तबला, सुर ताल, दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहने ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसी दिन कीर्तन सुनदियां किसी नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखिया है कीर्तन दा रस ते किसी नूं विरले नूं ही आउंदा है। लोग सुरां दे च, आवाज़ां दे च, अगले दे रंग रूप च या व्यर्थ दियां साखियां च ही फस के रह जांदे ने, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोकां दी स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए। सच दी विचार, फोकियां साखियां नहीं। और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ते पूरी नहीं उतरती, उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विचारां दे च निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने। ये सुन के ही अंदर प्रवेश करते हैं। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहेली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहित है, वो आकार वाला भी है। वो सरगुण है, वो निर्गुण है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे च एक है, वो सरगुण रूप दे च अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कभी जगत दे च बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बाहरों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं है। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग है। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन दे उत्ते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5 अरब अंगूठे अलग अलग ने। और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे हैं सब दे अलग अलग, आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख दी गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त दी गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10,000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे इक्को दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कतई ने। रंग दे च, रूप दे च, आकार दे च, वजन दे च, स्वाद दे च लाजमी फर्क होएगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साडी पकड़ दे च आवे भावें ना आवे।
ਉਹ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਨਰੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहते हैं कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और अज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि गालबन 50 अरब सूरज साड़ी पकड़ दे, साड़ी समझ दे आ गए ने। इतने इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन के दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटण वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बददा है, घटदा है ते मिटदा है। ये तिन्ने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारियां ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थल्ले असीं जी रहे हैं, ये अपनी जवानी हंडा चुके, बुढ़ा हो गया है। 40 लाख टन वजन एक सैकंड दे इसका घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटण नूं ही महापरले कहंदे ने। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असीं जी रहे हैं, भावें अरबां खरबां इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दोहरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आउंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नूं ना लईए। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किस ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वख वख है, पर इस सारी अनेकता दे च रमिया होया एक है। एक है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों होया है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह दा। महाराज कहते ने एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या ते बच्चे खेडदे ने, खेल या परमात्मा खेडदा है, बाकी खेल नहीं ने। जिस दे च जित होवे, जिस दे च हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दे च नफा होवे, जिस दे च नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि च वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क के खिलाड़ी हार जाते ने, कहते फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जित गया है, ये जंग है या कि खेल है। और जिस मुल्क के खिलाड़ी हार जाते ने, सोगवार होके आउंदे ने, रोंदे हुए आउंदे ने। और जिस मुल्क के खिलाड़ी जित जान, नचदे हुए आउंदे ने, मुल्क दे च उन्हां दा स्वागत आउंदा है,
उन्होंने इनाम मिलते हैं, जैसे किसी मुल्क को जित के आए ने और वाकई नाम भी लिया जाता है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनों मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं है। जिस दे जित है, जिस दे हार है, जिस दे हार दी घिरना होवे, जिस दे हार दी बेइज्जती होवे, ते जिस दे जित दा तकब्बुर होवे, उन्होंने खेल आखण की की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिहदे च नुकसान दा दुख होवे, जिहदे च नफे दी खुशी होवे, उन्होंने खेल आखण की लोड़ की है? ये तो धंधा है। खेल बच्चे खेडदे ने, खेल परमात्मा खेलदा है। दरिया दे कंढे ते, सागर दे तट ते बच्चे खेल पे खेडदे ने। रेत दे महल खड़े कर रहे ने, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी इकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्हां महलों दे च रहना है जो इतनी मेहनत नाल पे बनाते ने, इतनी इकाग्रता नाल बना रहे ने? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे ने। महल बन गए ने, इधरों सूरज डुबण वाला है, शाम हो गई है, घर दी याद आई है। हसदियां हसदियां रेत दे महल खड़े कीते सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे ने। बड़ी इकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी इकाग्रता दे नाल तोड़ रहे ने। जद बनाण लगे सन खुश हसदियां हसदियां, अज मिटाण लगे ने खुश हसदियां हसदियां। खेल है, धंधा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल। जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं। खेल तमाशा, सुंदरता करूपता दे च बदल जाती है, हासे रोणियां दे च बदल जाते हैं। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हासियां दे थल्ले परेशानियां छुपियां पईयां ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थल्ले मरण छुपिया पे। खेल तमाशा बनाण लगिया प्रसन्नता है परमात्मा नो, मिटाण लगिया भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जाता है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जाता है। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे खेल नू संकोचदा है एक, तो जद खेल खेलन लगता है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। इस अनेकता दे जिहड़ा एक नू वेख लवे, एक नू समझ लवे, वो पवित्र है। उसनू किसी नाल घिरना नहीं होवेगी, किसी मुल्क नाल, किसी जात नाल, किसी व्यक्ति नाल, किसी कौम नाल, किसी धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाहट वजेगी, मंदिर नू वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागणगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलों लंघिया भी उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगां पैदा होणगियां, भेद ते मिट गया। उन्होंने दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है, अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वो एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरां अनेक है। जिसनू लहरां नाल नफरत है, उन्होंने सागर नाल भी नफरत है। जिन्हों किरणा नाल नफरत है, उन्होंने सूरज नाल भी नफरत है। जिन्हों अनेकता नाल नफरत है, उन्होंने एक नाल भी घिरना है। उन्होंने एक दी कोई समझ नहीं, उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फैसला, एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नू समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझिया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा, एकाग्रता बख्शनी। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास, तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया,
2 3 4 5 नहीं, एक। सिर्फ एक नूं पढ़िया ही नहीं, मन दे च भी एक नूं वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न नूं तैयार। दूजी तीजी गल मैं सुनन नूं तैयार नहीं, पढ़न नूं तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़दा। भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नूं। सिर्फ पढ़िया ही नहीं, मन दे च वसाया एक नूं। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए न जाणियो। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नूं। थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलदे हो उन्हां च एक प्रगट होंदा है। अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे? उसके व्यवहार तो, उसके बोलण तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्जे जिंदगी तो। और किस तरह हो सकता है गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर दे रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उहदे आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन दे निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास थोड़ी रसना ते एक, थोड़े नेत्रां दे च एक, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए ना जाने। तुसीं एक तो बिना दूजे नूं नहीं जानदे। तुहानूं एक ही एक दिखाई देंदा। सारियां किरणां दे च इक्को ही सूरज दिखाई देंदा है। तुहानूं सारी लहरां दे च इक्को ही सागर दिखाई देंदा है। तुहानूं सारी अनेकता दे च एक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने, सुपन एक पर तख एक, इकसमें लीने हो। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहंदे हो, एक दे च लीन रहंदे हो, पर जद तुसी सौ जांदे हो तुहानूं सुपने भी एक दे ही आउंदे ने। तुसी सुपनियां दे च भी एक दे च लीन रहंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वपन अवस्था भी एक नाल जुड़ी हुई है। सुपन एक पर तख एक, इकसमें लीणियो, 30 एक अर पंच सिद्ध 35 निखीणियो। ये सारे हिंद से जमा करने पैणगे, जोड़ करना पड़ेगा। 30 एक अर पंच सिद्ध 35 निखीणियो, 30 एक 31 5 36 ते 35 71। हे गुरु अमरदास ये अवस्था थोड़ी 71 वरे दी उम्र दे च बनी। 71 साल दी अवस्था दे च ऐसा जीवन आप नूं नसीब होया। 30 एक अर पंच सिद्ध 35 निखीणियो, इक्को जे लाख लखो अलख है, एक एक कर वर्ण्यो। गुरु अमरदास कब भल भण तू एक लोड़े, एक मन्यो। कवि भल भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा, तुहानूं एक दी लोड़ है। तुसीं एक नूं मनदे हो, एक नूं वेखदे हो, एक नूं बोलदे हो, एक नूं पढ़दे हो और एक नूं मन दे च वसाया। थोड़ी जागृत अवस्था दे च एक, थोड़ी स्वपन अवस्था दे च भी एक। तुसीं इस गल नूं समझ लिया है कि एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नूं कोई समझ जाए, एक नाल कोई जुड़ जाए, वही पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं। क्योंकि उन्होंने सारियां लहरां दे सागर दिखाई देगा, उन्होंने सारियां किरणां दे सूरज दिखाई देगा, उन्होंने सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा, उन्होंने सारे पशु पक्षियां दे ईश्वर दिखाई देगा। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ये विश्व संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये अवस्था जिसकी बन जाए ओही पावन है, ओही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है। अनेकता तेरा खेल है, अनेकता तेरा तमाशा है, ते बस मैं यही तमाशा देखन नहीं आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। अनेकता तमाशा दिखाई देवे एक दा, तो जद एक नाल प्यार है तो उसके तमाशे नाल भी प्यार हो जाएगा, उदा तमाशा भी चंगा लगेगा। हे प्रभु खूब तेरा तमाशा, जम रहा जेड़ा ओही मर रहा है, जवान हो रहा जेड़ा ओही बुढ़ा हो रहा है।
ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਸ ਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੱਸ रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, ਸਕੂਨੇ ਕਲਬ ਸੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਸੇ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਕੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹੀ ਭਗਤ, ਉਹੀ ਸੰਤ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ, ਉਹੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਉਹੀ ਅਵਤਾਰ, ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਵਨ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।